everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to see the solution of let's do homework section of chapter number 6, one with give and take. So let's begin with question number 1. Question number 1 is subtract. यहाँ पे हमें ढेर सारे questions दिए हुए हैं, इन्हें हमें subtract करना है. So let's start with number 1. Number 1 is 926 minus 658. So we cannot subtract 6 from 8 because 6 छोटा नंबर है, 8 बड़ा नंबर है. So what we will have to do, we will have to borrow. So 2 से borrow करते हैं, 2 को कट करके लिखेंगे हम 1 और 6 को कट करके लिख देंगे 16. Now 16 minus 8 is 8. 1 में से 5 माइनस नहीं होगा, again we have to borrow. 9 को कट करके लिखेंगे 8 और यहाँ आगे लगा देंगे 1. ठीक है, यहाँ हो जाता है 11. 11 minus 5 is 6 and 8 minus 6 is 2. So answer is 268. Next, 823 minus 386. Now 3 minus 6 is not possible because 3 छोटा नंबर है, 6 बड़ा नंबर है. So we will have to borrow. So 2 से borrow करेंगे, 2 को कट करके लिख देंगे 1 और 3 के आगे लगा देंगे 1, या तो 3 को कट करके लिख देंगे 13. ओके, आप 3 के आगे 1 भी लगा सकते हो तो वो भी 13 हो जाएगा. So 13 minus 6 is 7. 1 minus 8 is not possible. So again we will have to borrow. 1 छोटा है, 8 बड़ा नंबर है, तो again हम क्या कर लेंगे, borrow कर लेंगे. तो 8 को कट करके लिख देंगे 1 and 1 के आगे लगा देंगे 1. ओके, तो यहाँ हो जाएगा 11. 11 minus 8 is 3 and 7 minus 3 is 4. So answer is 437. Now number 3. 753 minus 308. So 3 minus 8 is not possible. So we will have to borrow from 5. So 5 को कट करके लिखेंगे 4 and 3 को कट करके लिख देंगे 13. So 13 minus 8 is 5. 4 minus 0, 4. 7 minus 3 is also 4. So answer is 445. Now next, 678 minus 593. 8 minus 3 is 5. 7 minus 9 not possible. 7 छोटा नंबर है, 9 बड़ा नंबर है. So we will have to borrow. So let's borrow from 6. 6 को कट करके लिखेंगे 7. यहाँ आप 7 के आगे 1 लगा दो या फिर यहाँ पे हम 17 लिख देंगे. ओके, so 17 minus 9 is 8. 5 minus 5 is 0. So answer is 85. Now next, 438 minus 99. 8 minus 9 is not possible. Let's borrow from 3. 3 को कट करके लिखेंगे 2. यहाँ हो जाएगा 18. 18 minus 9 is 9. 2 minus 9 again not possible. Let's borrow. 4 को कट करके लिखेंगे 3. यहाँ हो जाएगा 12. 12 minus 9 is 3. Then 3 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0. तो 3 minus 0 is 3. So answer is 339. Now next, 536 minus 75. 6 minus 5 is 1. 3 minus 7 not possible. We will have to borrow from 5. So let's borrow. 5 को कट करके लिख देंगे 4. 3 को कट करके लिख देंगे 13. 13 minus 7 is 6. Then 4 यहाँ कुछ नहीं है तो 0. ठीक है, 4 minus 0 is 4 itself. So answer is 465. Okay, sorry, 461. Now next, now number 7. 794 minus 338. Now 4 minus 8 is not possible. We will have to borrow. Let's borrow from 9. So 9 को कट करके लिखेंगे 8. यहाँ पे आगे 1 लगा सकते हैं या फिर हम यहाँ 14 लिख सकते हैं. So 14 minus 8 is 6. Then 8 minus 3 is 5 and 7 minus 3 is 4. So answer is 456. Now next, 864 minus 419. So 4 minus 9 is not possible. 4 छोटा नंबर है, 9 बड़ा नंबर है. So we will have to borrow. So 6 से borrow करेंगे हम. So 6 को कट करके लिखते हैं 5. 4 को कट करके लिखेंगे 14. 14 minus 9 is 5. 5 minus 1 is 4. 8 minus 4 is also 4. So answer is 445. Now 607 minus 95. 7 minus 5 is 2. 0 minus 9 not possible.
सो वी विल हैव टू बोरो. 6 को कट करके लिखेंगे 5 एंड 0 को कट करके लिखेंगे 10. सो 10 माइनस 9 इज़ 1. 5 यहाँ कुछ नहीं है तो 0. 5 माइनस 0 इज़ 5. सो आंसर इज़ 512. नाउ नेक्स्ट 804 माइनस 188. सो 4 में से 8 माइनस करना नॉट पॉसिबल. वी विल हैव टू बोरो बट वी हैव 0 over here. सो वी विल बोरो फ्रॉम 8. सो 8 को कट करके लिखेंगे 7. यहाँ हो जाएगा 10. अब 10 से बोरो करेंगे तो यहाँ होगा 9. यहाँ हो जाएगा 14. नाउ 14 माइनस 8 इज़ 6. 9 माइनस 8 इज़ 1 and 7 minus 1 is 6. So answer is 616. Now 432 minus 126. So 2 minus 6 is not possible. We will have to borrow. So 3 को कट करके लिखेंगे 2 and 2 को कट करके लिखेंगे 12. So 12 minus 6, 6. 2 minus 2, 0. 4 minus 1 is 3. Now next 385 minus 197. 5 minus 7 not possible. We will have to borrow from 8. So 8 को कट करके लिखेंगे 7 and 5 को कट करके लिखेंगे 15. So 15 minus 7 is 8. 7 minus 9 again not possible. We will have to borrow from 3. So 3 को कट करके लिखेंगे 2 and यहाँ आगे हम लगा देंगे 1. So 17 minus 9 is 8. 2 minus 1 is 1. So here the answer is 188. So इसी तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चंस भी अपने आप सॉल्व करने हैं. सारे के सारे सब्ट्रैक्शन हैं. So you have to try yourself because this is homework section. So you have to try yourself. Now let's move to next question. Now we have question number 2. Question number 2 is solve the problems. यहाँ पे हमें word problems दी हुई है. So let's start with number 1. A village has a population of 907 people. Out of them 359 people went to a nearby village for a marriage function. How many people will be left in the village now? एक विलेज के अंदर कितने लोग रहते हैं? 907 लोग रहते हैं. उसमें से 359 लोग पास के गांव में शादी के फंक्शन अटेंड करने के लिए गए हुए हैं. अब हमें ये बताना है कि गांव के अंदर कितने लोग बच गए. तो हम क्या करेंगे? टोटल पॉपुलेशन में से माइनस कर देंगे जो लोग शादी में गए हैं. तो हमें क्या पता चल जाएगा कि घर में कितने लोग विलेज में कितने लोग बच गए हैं. सो पॉपुलेशन ऑफ द विलेज का पॉपुलेशन है 907. पीपल वेंट इनटू मैरिज, शादी में जो लोग गए हैं 359. हमें क्या करना है? माइनस. सो 7 माइनस 9 नॉट पॉसिबल. वी विल हैव टू बोरो. यहाँ 0 है तो हम कहाँ से बोरो करेंगे? 9 से. सो 9 को कट करके लिखेंगे 8. 0 को कट करके लिखेंगे 10. अब 10 से बोरो करेंगे, यहाँ हो जाएगा 9 एंड हियर इट विल बी 17. 17 माइनस 9 इज़ 8. 9 माइनस 5, 4 and 8 minus 3 is 5. So answer is 548. So 548 people left in the village. Now गाँव में कितने लोग बच गए? 548. Now question number 2. Question number 2 is a dairy collects 613 liter of milk in one day. 275 liter of milk was sold out of it. How much milk is left over? एक डेयरी एक दिन में कितना दूध कलेक्ट करती है? 613 लीटर ऑफ मिल्क कलेक्ट करती है. उसमें से 275 लीटर सोल्ड आउट, यानी कि उसमें से 275 लीटर मिल्क जो है वो बेच दिया है. अब कितना मिल्क बच गया है? तो हम क्या करेंगे? 613 लीटर ऑफ मिल्क में से 275 लीटर मिल्क माइनस कर देंगे. ठीक है, जो दूध बेच दिया गया है. तो हमें क्या पता चल जाएगा कि कितना मिल्क बच गया है. सो मिल्क कलेक्टेड इन वन डे 613. नाउ मिल्क सोल्ड आउट ऑफ इट, कितना मिल्क सोल्ड आउट हो गया है? 275. सो मिल्क लेफ्ट फाइंड आउट करते हैं. 3 minus 5 not possible. We will have to borrow from 1. So here it will be 0 and here it will be 13. Now 13 minus 5 is 8. 0 minus 7 not possible. We will have to borrow from 6. So here it will be 5 and here it will be 10. 10 minus 7, 3. 5 minus 2 is also 3. So answer is 338. कितना लीटर ऑफ मिल्क बच गया है? So 338 liter of milk is left over now. Now let's see
क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज अ स्टोरी बुक हैज़ 290 पेजेस. एक स्टोरी बुक के अंदर कितने पेजेस हैं? 290 पेजेस हैं. उषा रेड 86 पेजेस आउट ऑफ इट इन 2 days. उषा ने उसमें से 86 पेजेस 2 दिन में रीड कर लिए. हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट टू बी रेड बाय उषा. अब कितने पेजेस रीड करने के लिए बाकी रह गए हैं? तो टोटल पेजेस में से हम वो पेजेस माइनस कर देंगे जो कि उषा ने रीड कर लिया है, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने पेजेस बाकी है. सो टोटल पेजेस इन द स्टोरी बुक इज़ 219. उषा रेड पेजेस इन 2 days. उषा ने कितने पेजेस रीड कर लिए? 86. अब पेजेस लेफ्ट टू बी रेड बाय उषा माइनस कर देते हैं. 0 minus 6 not possible. We will have to borrow from 9. So here it will be 8 and here will be 10. 10 minus 6 4. 8 minus 8 0 and here it will be 0. So 2 minus 0 is 2. So कितने पेजेस बाकी रह गए हैं to be read by Usha? 204. Therefore 204 pages are left to be read by Usha. Now let's see number 4. नमन went to the town with rupees 800. नमन 800 रुपीज़ लेके टाउन में गया. He purchased jeans worth 607 rupees. उसने जीन्स खरीदी for rupees 607. How much money is left with him now? अब उसके पास कितने पैसे बचे? क्या करेंगे हम? 800 रुपीज़ में से 607 रुपीज़ माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि नमन के पास कितने रुपीज़ बचे. सो मनी विथ नमन 800 रुपीज़. कॉस्ट ऑफ जीन्स इज 607. माइनस करते हैं. 0 minus 7 इज़ नॉट पॉसिबल, सो वी विल हैव टू बोरो. बट यहाँ पे भी 0 है, तो हम कहाँ से बोरो करेंगे? 8 से. सो 8 को कट करके 7, 0 को कट करके 10, 10 को कट करके 9 एंड हियर इट विल बी 10 अगेन. सो 10 minus 7 3, 9 minus 0 9 and 7 minus 6 is 3. Okay, so answer is 393. Sorry, 7 minus 6 is 1. Okay, let's do the correction. 7 minus 6 होता है 1. So 193 रुपीज़. तो नमन के पास कितने रुपीज़ बचे? 193 rupees. Now let's see the next one. Now number 5. 358 women and 672 men voted in the पंचायत election. कितने लोगों ने पंचायत इलेक्शन में वोटिंग किया? 358 women and 672 men voted in the panchayat election. Now how many more men voted than women in this election? अब see, वुमेंस जो हैं वो 358 है, मेंस जो हैं 672 है, यानी कि मेंस ज़्यादा है. अब हमें पूछा है कि मेंस जो हैं वो कंपेयर टू वुमेन कितने ज़्यादा हैं. ठीक है, यानी हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन. सो नंबर ऑफ मेन वोटेड 672, देन नंबर ऑफ वुमेन वोटेड इज 358. Let's find out the difference. So 2 minus 8 is not possible. We will have to borrow from 7. So 7 को कट करके लिखेंगे 6 and here it will be 12. 12 minus 8 is 4. 6 minus 5 is 1 and 6 minus 3 is 3. So answer is 314. यानी कि कितने ज़्यादा मेंस थे वोटिंग में? 314 मेंस ज़्यादा थे. ओके, 300. Therefore 314 more men voted than women in this election. Now let's see question number 3. Details of books sold during 2 days in a bookshop are given. 2 दिनों के अंदर कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं उसकी हमें डिटेल्स दी हुई है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ इट. अब जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके बेसिस पे हमें आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड आउट. पहले हम देखते हैं टेबल में क्या दिया हुआ है. तो पहले हमें दिया है फर्स्ट डे गुजराती बुक्स. तो फर्स्ट डे गुजराती बुक्स कितनी सोल्ड हुई? 326. सेकेंड डे 258. टोटल गुजराती बुक्स कितनी सोल्ड हुई? तो हम ऐड कर लेंगे. 6 + 8 इज़ 14. सो 4 1 5 + 2 7 + 1 8 एंड 3 + 2 5. सो टोटल गुजराती बुक्स सोल्ड हुई हैं 584. ओके, देन हिंदी बुक्स. फर्स्ट डे 207 एंड सेकेंड डे 175. टोटल सोल्ड हुई हैं 7 + 5 is 2 1
then 7 plus 0 plus 1 is 8 and 2 plus 1 is 3. 382 हिंदी बुक्स टोटल सोल्ड हुई हैं 2 दिन के अंदर. देन इंग्लिश बुक्स कितनी सोल्ड हुई हैं 189 प्लस 97. सो 9 प्लस 7 इज 16. 1 9 प्लस 8 प्लस 1 18 देन 1 2. Okay, so total English books sold हुई हैं 286. Now let's find the answers. Number 1, how many Gujarati books were sold altogether during 2 days? 2 days के अंदर टोटल कितनी गुजराती बुक्स सोल्ड हुई हैं? तो टोटल कितनी गुजराती बुक्स सोल्ड हुई है 584. देन हाउ मेनी इंग्लिश बुक्स वेयर सोल्ड ऑल टुगेदर ड्यूरिंग 2 days? तो इंग्लिश बुक्स टोटल कितनी सोल्ड हुई है 2 दिनों के अंदर 286. सो आंसर इज 286. How many more Gujarati books were sold than Hindi books on the first day? First day कितनी देखो फर्स्ट डे गुजराती बुक्स कितनी सोल्ड हुई है 326 और हिंदी 207, यानी कि गुजराती बुक्स ज़्यादा सोल्ड हुई हैं और हिंदी बुक्स कम. तो कितनी ज़्यादा सोल्ड हुई हैं वो हमें बताना है. ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे? डिफरेंस फाइंड आउट करके. सो 326 माइनस 207. ओके, इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे. 326 minus 207. 6 minus 7 not possible. We will have to borrow from 2. So here it will be 1 and here it will be 16. So 9, 1 minus 0, 1 and 3 minus 2 is 1. ठीक है, तो कितनी गुजराती बुक ज़्यादा सोल्ड हुई हैं 119. Now let's see the next one. How many less English books were sold then हिंदी बुक्स ऑन द फर्स्ट डे? अब हिंदी बुक सोल्ड हुई है फर्स्ट डे 207 और इंग्लिश बुक्स सोल्ड हुई है 189. तो इंग्लिश बुक्स कम है, हिंदी बुक्स ज़्यादा सोल्ड हुई है. तो इंग्लिश बुक कितनी कम सोल्ड हुई है ये हमें बताना है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? 207 माइनस 189. सो 207 माइनस 189. लेट्स फाइंड इट आउट. 207 minus 189. Now 7 minus 9 not possible. We will have to borrow since we have 0 over here. So we will borrow from 2. So rate will be 1, 10, then 9 and 17. 17 minus 9, 8. 9 minus 8, 1 and 1 minus 1, 0. तो कितनी इंग्लिश बुक ज़्यादा कितनी इंग्लिश बुक कम सोल्ड हुई है कंपेयर टू हिंदी? 18. ओके, सो यहाँ पे हम लिख देंगे 18. Okay, now next number 5. Number 5 is how many more Gujarati books were sold than English on the second day? Okay, so second day सी क्या बोला है? गुजराती बुक्स कितनी है 258 एंड इंग्लिश बुक्स कितनी है 175. तो गुजराती बुक्स ज़्यादा सोल्ड हुई है, हिंदी बुक्स कम. सॉरी, नॉट इंग्लिश, हमें यहाँ बात करनी है गुजराती एंड इंग्लिश. तो गुजराती है 258 और इंग्लिश बुक है 97. तो इंग्लिश बुक्स कम सोल्ड हुई हैं और गुजराती बुक्स जो है वो ज़्यादा सोल्ड हुई हैं. ठीक है, तो कितनी ज़्यादा सोल्ड हुई हैं ये हमें बताना है. सो व्हाट वी विल हैव टू डू, वी विल हैव टू फाइंड द डिफरेंस. तो गुजराती है 258 माइनस 97. सो लेट्स सब्ट्रैक्ट 258 minus 97. So 8 minus 7 is 1 and 5 minus 9 not possible. Let's borrow. So here it will be 15. So 15 minus 9 is 6 and 0. 1 minus 0 is 1. So 161. यानी कि कितनी गुजराती बुक ज़्यादा सोल्ड हुई है कंपेयर टू इंग्लिश? 161 बुक्स ज़्यादा सोल्ड हुई है. नाउ नंबर 6. हाउ मेनी लेस बुक्स ऑफ हिंदी वेयर सोल्ड देन गुजराती बुक ड्यूरिंग द 2 days? ठीक है, यानी ड्यूरिंग द 2 days की बात हुई है, यानी कि अब हमें टोटल्स में डील करना है और हिंदी एंड गुजराती. तो हिंदी टोटल बुक्स कितनी सोल्ड हुई हैं 382 और गुजराती 584. यानी कि अब हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी हिंदी बुक्स कम सोल्ड हुई हैं कंपेयर टू गुजराती. सो व्हाट वी विल हैव टू डू, वी विल हैव टू फाइंड द डिफरेंस. सो 584 minus 382. Let's find it out. 584 minus 382. So 4 minus 2, 2. 8 minus 8, 0. 5 minus 3 is 2. यानी 202.
ओके, यानी कि हिंदी बुक्स कितनी कम सोल्ड हुई हैं कंपेयर टू गुजराती, 202. नाउ नंबर 7, how many more books of Hindi were sold than English during the 2 days? Again we have to deal in totals because 2 days की बात हुई है. तो कितनी हिंदी बुक सोल्ड हुई हैं 382 एंड कितनी इंग्लिश बुक सोल्ड हुई हैं 286, यानी हिंदी ज़्यादा है तो हमें बताना है कितनी ज़्यादा है. ओके, सो हाउ वी विल डू इट, 382 minus 286. So 382 minus 286. Let's do it. 2 minus 6 not possible. Let's borrow. So 7, 12. 12 minus 6, 6. 7 and minus 8 not possible. Again we will have to borrow. So here it will be 17. 17 minus 8 is 9. Then 2 minus 2, 0. So answer is 96. यानी कि कितनी हिंदी बुक ज़्यादा सोल्ड हुई हैं, 96 हिंदी बुक ज़्यादा सोल्ड हुई हैं कंपेयर टू इंग्लिश इन 2 days. नाउ नेक्स्ट नंबर 8, इज़ द टोटल ऑफ सेलिंग ऑफ हिंदी बुक्स ड्यूरिंग द 2 days मोर और लेस दैन 350. यानी कि 2 दिन में हिंदी बुक जो सोल्ड हुई हैं वो 350 से ज़्यादा है या कम है. तो टोटल कितनी बुक सेल हुई हैं 382, वो 350 से ज़्यादा है. सो आंसर इज़ मोर. नाउ हाउ मच मोर और लेस. ठीक है, अब मोर है यानी कि ज़्यादा सेल हुई है, तो कितना ज़्यादा सेल हुई है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. 382 माइनस 350. सो 382 माइनस 350. सो 2 माइनस 0 2, 8 माइनस 5 इज़ 3 एंड 3 माइनस 3 इज़ 0, यानी कि आंसर है 32. तो 350 से 32 बुक ज़्यादा सोल्ड हुई है. नाउ नंबर 9, is the total of Gujarati books and English books more or less than 500 on the first day? How much more or less? ओके, सो इसमें बोला है कि फर्स्ट डे गुजराती और इंग्लिश दोनों मिला के जो सेलिंग हुई है वो 500 से ज़्यादा है या कम है. तो फर्स्ट डे गुजराती कितनी बुक सोल्ड हुई हैं 326 और इंग्लिश बुक कितनी सोल्ड हुई हैं 189. तो हम सबसे पहले टोटल कर लेंगे 326 प्लस 189. सो 6 प्लस 9 इज़ 15, 5, 1, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11, 1, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5. आंसर इज़ 515. ओके, 515 आया. इट मीन्स हमें यहाँ क्या पूछा था कि इज़ द टोटल ऑफ सेलिंग ऑफ गुजराती बुक्स एंड इंग्लिश बुक मोर और लेस देन 500 ऑन द फर्स्ट डे. तो 515 आया था, इट मीन्स इट इज़ मोर. ओके, तो आंसर इज़ मोर. अब हमें पूछा है हाउ मेनी मोर और लेस, यानी कि ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, कम है तो कितना कम है. तो अब ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, हमारा क्या आया था 515. तो इसमें से हम लेस कर देंगे 500. तो कितना ज़्यादा आया है वो हमें पता चल जाएगा. 5 माइनस 0 5, 1 माइनस 0 इज़ 1, 5 माइनस 5 इज़ 0. तो 15. ओके, 500 से 15 ज़्यादा है. ओके, सो आंसर इज़ 15. Now let's find out the last one. So is the total selling of Hindi book and English book more or less than 300 on the second day? अब सेकेंड डे की बात हुई है कि हिंदी और इंग्लिश का टोटल सेलिंग 300 से ज़्यादा है या कम. तो सेकेंड डे हिंदी का सेलिंग है 175 और इंग्लिश का सेलिंग है 97. लेट्स ऐड इट. सो 175 प्लस 97. सो 5 प्लस 7 is 12, 1, 9 plus 1 10, 10 plus 7 17, 1, 2. So 272. ठीक है, तो हमें यहाँ क्या पूछा था कि 300 से ज़्यादा है या कम. नाउ 272 इज़ लेस देन 300, सो आंसर विल बी लेस. अब पूछा है हाउ मैनी मोर और लेस, यानी कि कम ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, लेस है तो कितना लेस है. ठीक है, तो आंसर आया था 272. हम उसे माइनस कर लेंगे 300 से तो हमें पता चल जाएगा कितना कम आया है. ओके, सो 300 माइनस 272. नाउ 0 माइनस 2 इज़ नॉट पॉसिबल. वी विल हैव टू बोरो फ्रॉम 3 बिकॉज यहाँ पे भी 0 है. सो 3 को कट करके लिखेंगे 2, हियर इट विल बी 10. 10 को कट करके लिखेंगे 9, हियर इट विल बी 10. 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 7 2. ओके, तो कितना कम है 28 कम है. तो यहाँ पे हम लिख देंगे 28.
8। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 होता है ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी or suggestion, let me know in the comment section. I will see you in the next video with a new chapter. Till then, bye bye, take care.